Namaskar doston. Today again we are here to discuss India-US tariff war. This is the talk of the town everywhere. People are talking about what is going to happen to India, what after globalization. Is this the ill effect of globalization what India is facing? These are so many questions which should come in the mind of each and every individual. Why Trump is so strong at the moment and he's manipulating the things across. So, if you look onto the status of India, the India's export was highest in 24-25 if we look upon, which was up to 824.9 billion US dollars. If you look onto this infographic, I have tried to present the things in a way that if you can look upon, the majority of the trade with India was with USA, UAE, Netherlands, China, and Singapore. USA accounted to around 17.9% export of India. UAE it was 8.23, Netherlands it was 5.16%, China we did around 3.85% of our international trade, and overall if you look upon the top countries buying from India, as we can say, is USA and UAE. The amount of export what we are doing with USA is actually going to hamper our business relationship and the income what we are generating from this trade. We although are the fastest growing economy in the world and about to reach around 900 billion US dollar trade overall, the fastest growing sector if we look upon is engineering goods and electronics goods, which we are exporting nowadays. Agricultural goods related export is around if you look upon 18.5%, and we have various government support which throughout we are getting for enhancing the export. But since the volume of export with USA is so high that the tariff what they have put upon across different sectors is remarkable. In USA, if we look upon in July 2025, the US announced a new round of tariff on Indian goods. We have to face this challenge because we are importing the crude oil from Russia, which US is not liking at all. A 25% of tariff has been imposed on Indian imports. All the goods what we are selling to USA, they are having extra penalty or tax of 25% on the price for the customers in US, which is making our things very costly as compared to what other exporters of US are giving. तो हमारे देश का जो एक्सपोर्ट यूएस में है या यूएस के लोग हमारे यहाँ से जो सामान खरीद रहे हैं उसकी कीमतें 25% ज़्यादा यूएस की सरकार ने कर दी है 1 अगस्त से। कई सारे सेक्टर्स का असर हमको अब देखते हुए मिलेगा कि कैसे नुकसान हमारे सेक्टर्स को हो सकता है। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने एडिशनल अनस्पेसिफाइड पेनल्टी लगाने की भी घोषणा करी है, जिसके अंदर वो अलग अलग तरीके से भारत से जाने वाला हर सामान पर या तो कोटा लगा देंगे, जिसमें कि वो पेनल्टी तो 25% कैश के रूप में लगा रहे हैं, लेकिन वो नॉन टैरिफ कोटा लगा सकते हैं, बैरियर्स लगा सकते हैं, डिले कर सकते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिले हो सकती है, क्वालिटी पे वो लोग रोक लगा सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक रोक लगा सकते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से कह सकते हैं कि यूएस से हमारे साथ जो सामान ख़रीदता आ रहा था अब उसने वो धीरे कर दिया है, रोक दिया है, और उसका असर हमारे देश की इकनॉमी पे काफ़ी कुछ हो सकता है।
इमीडिएटली इसका असर हमारी इंडियन इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स पे हमको अब देखने में आएगा। अगर बात करी जाए सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो ये जितने भी सेक्टर्स हम लोग अभी देखेंगे वो सब आप देखेंगे कि लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं। इंडिया एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री है, जैसे कि चाइना है, वियतनाम है, वैसे हम लोग भी लेबर ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं। जो दूसरी कैटेगरी की कंट्रीज़ होती है दुनिया भर में, वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, हम लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं। तो जो भी सामान हम बनाते हैं वो लेबर सस्ता होने की वजह से उन प्रोडक्ट्स को हम सस्ता बना पाते हैं, जो कि दुनिया के दूसरे देश जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है, तो वो महंगा बनाते हैं। इसलिए एक छोटा सा नियम एडम स्मिथ ये कह गए थे कि आप जहाँ पे कोई चीज़ अगर महंगी बनाते हो तो आप उनसे ख़रीद लो जो सस्ता बनाते हैं, और आप जो चीज़ आसानी से बना सकते हो, दूसरे लोग नहीं बना सकते, तो आप उनको वो एक्सपोर्ट करो। तो वही चीज़ हमको यहाँ देखने में मिलती है कि इंडिया जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादातर लेबर ओरिएंटेड ही रहती है। सबसे पहले लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में नाम आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल हम लोग ने यहाँ लेके रखा है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले टेक्सटाइल के ऊपर इंडिया से जितना भी माल अमेरिका ख़रीदता था उसके ऊपर वो केवल 12% टैक्स लगाते थे, टैरिफ लगाते थे, और उसको बढ़ा के उन्होंने 25% बढ़ा दिया, जिसका फलस्वरूप अब ये हुआ है कि द टैक्स रेट हैज़ गॉन अप टू 37%। ऑन द अदर साइड वियतनाम, जो कि हमारा कॉम्पिटिटर था इस मामले में, उसके ऊपर जो टैरिफ है अभी वो केवल 20% है। इसका सिंपल उदाहरण ये है कि अगर एक टी शर्ट भारत से हम लोग यूएसए में बेचें जिसकी कीमत 10% है, तो लगभग 13 रुपये 70 पैसे की वो अब हो जाएगी, और वहीं वो वियतनाम अगर बेचेगा तो वो $12 की बेच पाएगा। So $13, $13.7 is what our price would be, and the same T-shirt or shirt what Vietnam is going to make is going to sell at 12. So महंगा हो गया हमारे लिए टी शर्ट को वहाँ पे बेचना, और वहाँ के लोग नेचुरली 1.7 मीन्स $1.7 एक्स्ट्रा क्यों दें। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो दूसरा सेक्टर आता है जेम्स एंड ज्वेलरीज़, जो कि इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता है एक्सपोर्ट के लिए। जेम्स एंड ज्वेलरीज़ की बात करें तो अगर हम लोग कोई भी अगर ऑर्नामेंट $1000 का वहाँ पे बेच रहे थे पहले, तो उसके ऊपर केवल आप देखिएगा 5 से 13% टैरिफ लगता था, जो कि बढ़ा के अब 30 से 35% के आसपास हो गया है। तो $1000 जो पहले हम बेच पा रहे थे वो अब 1300 का बिकेगा। वहीं पे हमारी कॉम्पिटिटर कंट्री का जो प्राइस होगा वो 1200 के आसपास रहेगा। $100 हम लोग फिर महंगे हो जाएंगे हमारी उन चीज़ों में जो कि हम लोग पहले बेचते थे। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर हम जाएं, जैसे कि बेडशीट, चादर वगैरह, ये भी भारत से बहुत एक्सपोर्ट होती थी यूएसए में, जो पहले हम $30 की बेच पाते थे, उसके ऊपर अब टैक्स लगने की वजह से वो $40 की हो जाएगी, और वहीं कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ इसको सस्ते में बेच पाएंगी। फिर से अगर हम बात करें, इंडियन सी फूड एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। फ्रोज़न अगर सपोज़ फ़िश हम लोग एक्सपोर्ट करते थे जो $8 में पहले हम बेच पाते थे, अब 25% टैरिफ लगने के कारण वो और महंगी हो जाएगी, और ओवरऑल हम लोग ये देखेंगे कि वही चीज़ हम 10 में बेच पा रहे हैं, और वहीं कनाडा और चिली के लोग उसको 8 ही में बेच पा रहे हैं। $2 हम लोग और महंगे हो गए। ऑटो कंपोनेंट्स में इसी तरीके से जो हम $50 का सामान बेच पाते थे वो अब $67 के आसपास बिकेगा, और वहीं दूसरे देश के लोग $50 पे बेच पाएंगे। $17 का हमें फिर से नुकसान हुआ। ये नुकसान हमको लेदर इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, हमको इंजीनियरिंग गुड्स में भी देखने को मिलेगा, हमको ये सेमीकंडक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ओवरऑल इसका पूरा इम्पेक्ट ये होगा कि जो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसमें कम से कम हमारे देश में इस बार 15 से 20% का नुकसान इस टैरिफ वॉर में होगा।
जीडीपी जो हमारा होगा वो लगभग 30 बेसिस पॉइंट कम होने की उम्मीद है और हम लोग को कम से कम 35 से 28 बिलियन डॉलर का नुकसान इस बार देखने को मिल सकता है। सेक्टरल लॉस भी आप यहाँ पे इस इन्फोग्राफिक में देख पा रहे हैं। खैर, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हम इस चीज़ को कैसे जीते। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, हम लोग चीज़ों को और बेहतर और सस्ता बनाने की कोशिश करें, अपनी क्वालिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश करें दूसरे देश के कंपैरेटिवली, और जो भी माल हम बना पा रहे हैं वो अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाएं और भी कई नए नए एरियाज़ में हम जाकर अपने ट्रेड को देखें और यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।